Hey everyone, in this lecture we are going to solve the questions of probability which are based on combinations. So these are the four questions, question number 13, 14, 15 and 16 we are going to do today in this lecture. Now before starting with these questions, it is important to remember the formula of combination and to know how to solve that particular combination sum, right? So to start with, we can understand the meaning of combination. So what do you mean by combination? Combination का मतलब होता है selection. Whenever we want to select something, we can use combination. Now for example, let's say we need to select a particular team. We need to select a team of 11 players. So there might be total 20 members from which you have to select those 11 players. So whenever there is a topic of selection, we need to use combinations. Okay. Now what is the formula of combination? The formula of combination is simple. It is NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now what do you mean by this factorial? Factorial का मतलब होता है, let's say if it is 5 factorial, it will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It is like a time bomb. We need to multiply in a descending order till one number. Alright, then let's say NCR, for an example it is 10C3. So how do you solve 10C3? So 10 factorial upon, see this is our n and 3 is our r. So n की जगह पे 10 लिखेंगे, r की जगह पे 3 लिखेंगे. So 10 factorial upon 3 factorial into 10 minus 3 factorial. So 10 factorial into 3 factorial into 10 minus 3 is 7 factorial. So we don't need to open this 10 till 1 because there is a 7 factorial in denominator which can be cutted through. So 10 factorial into 9 into 8 into 7, we can stop it at 7, divide by 3 factorial into 7 factorial. So 7 factorial can be cutted or whatever it is. 10 into 9 into 8 divided by 3 factorial. Now this 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1, which is 10 into 9 into 8 divided by 3 factorial is 3 into 2 into 1. So what is 10 into 9 into 8? So let's calculate 10 into 9 into 8. Is 720, and 3 into 2 into 1 is 6. So 720 divided by 6 will be 120. So the answer of 10C3 is equal to 120. Alright, now what do you mean by this 120? That if we want to select 3 people out of 10 people, so the total possible ways of selection can be 120. Alright, now we are going to solve this 4 question 13, 14, 15 and 16. Now the easiest one is question number 14 here. So let's see. 8 workers are employed in a factory and 3 of them are excellent in efficiency. There are total 8 workers. Now whenever there is a sum on combination, we need to make a diagram to understand it carefully. So there are 8 workers in a factory and 3 of them are excellent in efficiency. So we can write out of 8, these 3 are excellent and the other rest of them are moderate. So अगर 8 में से 3 excellent है तो बचे 5, वो है moderate. राइट, नाउ इसके बाद क्या लिखा है सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 वर्कर्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 वर्कर्स. सबसे पहले दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा बोला है 8 में से तुमको 2 सिलेक्ट करना है. सो हमारा टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन बन जाएगा 8C2 विच इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 minus 2 factorial. The formula of combination n factorial upon r factorial into n minus r factorial. So 8 factorial upon 2 factorial into 6 factorial. So we can open this 8 till 6 only. So 8 into 7 into 6 factorial divided by 2 into 6 factorial. 6 cut, 8 7s are 56 and 56 divided by 2
is 28 I guess. Let's see, I just don't want to be wrong here, so just confirmation. Alright, don't judge me. 56 divided by 2 is 28. Yes, I am right. I'm always right. Anyway, so this is the answer of 8C2, and this is our total wage of selection, which is known as N. Now what is the probability here? The probability says find the probability. The first question is both the workers have excellent efficiency. So we can make another diagram here. 8 workers, 3 excellent and 5 moderate. The question says both of them are excellent. We need to select excellent, but we can only select 2 workers. Alright, तुमको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ये 2 सिलेक्ट करने, तो पूरे क्वेश्चन में 2 ही सिलेक्ट करने होंगे. फिर भले तुम्हारे पास ये 3 एक्सीलेंट है, 5 मॉडरेट है, यू नीड टू सिलेक्ट 2 ओनली. और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो 2 सिलेक्ट कर रहे हो दोनों के दोनों एक्सीलेंट है, तो तुम्हारे पास एक्सीलेंट टोटल कितने 3, और ये तुमको एक्सीलेंट कितने चाहिए 2. सो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3C2. और मॉडरेट हमको एक भी चाहिए नहीं, तो मॉडरेट अगर एक भी नहीं चाहिए तो 5C0 हो जाएगा. सिंपल एज दैट. एंड 3C2 का अगर तुम आंसर फाइंड करोगे तो आई रिमेंबर इट इज़ 3 ओनली, एंड 5C0 इज़ 1, एंड 3 1s are 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m/n इज़ 3/28. राइट, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है और मॉडरेट में से 1 को भी सिलेक्ट नहीं करना है. And if you want, you can skip this step also. So you can also write direct 3C2 also, which is okay. 3C2, 3 में से 2 को सिलेक्ट किया तो आंसर इज 3. सो P of A is 3/28. You can do it directly also. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोथ द वर्कर्स हैव मॉडरेट एफिशिएंसी. बोथ हैव मॉडरेट एफिशिएंसी. So if both have moderate efficiency, there are total 5 moderate workers and we need to select 2 only. So combination will be 5C2. And what is 5C2? 5 factorial upon 2 factorial into 5 minus 2 factorial, which is 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, which is 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 3 factorial. 3 cut, 5 4s are 20, 20 divided by 2 is 10. So this is easy, and I hope you know how to solve sums on combinations. Anyway, this is our A. So P of A m/n 10/28. And last question says one worker is excellent and one worker is moderate. So we know that there are 3 excellent, one worker is excellent. So 3 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनेगा 3C1, एंड बीच में वर्ड एंड है. सो वन की वर्ड इज़ हियर. जब भी क्वेश्चन में एंड लिखा हो उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, और लिखा हो उसका मतलब होगा एडिशन. ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द थियरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी. वेन एवर द वर्ड इज एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, एंड वेन एवर द वर्ड इज और यू हैव टू एड इट. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन वर्कर इज एक्सीलेंट एंड, बीच में वर्ड इज एंड, वन वर्कर इज मॉडरेट. तो 5 में से 1 मॉडरेट सिलेक्ट करना है तो 5C1 बन जाएगा. अभी बीच में एंड है तो मतलब क्या हो गया, 3C1 इंटू 5C1, एंड 3C1 इज़ नथिंग बट 3, 5C1 इज़ नथिंग बट 5, एंड 3 5s are 15. सो P of C m/n 15/28, and our question is over. I hope you don't have any doubts, and if you have, you can let me know in the comment section, and please like, share and subscribe. Question number 13 we can start now. Question number 13 says, question number 13 is very easy. Question number 13 says there are 4 couples. There are 4 couples, husband and wife. They have written in bracket that couples जो है वो husband wife है, girlfriend boyfriend anything you are thinking, it is not. So 4 couple, 4 couples, it means husband 1, wife 1. Husband 2, wife 2, husband 3, wife 3, husband 4, wife 4. So there are total 4 husbands and 4 wives. So there are total 8 people.
and 4 couples. This is our formation of the question. 2 persons are randomly selected from these 8 person. ये 8 में से we need to select 2. So हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन. तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन क्या बनेगा? 8C2 विच इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल which is 8 factorial upon 2 factorial into 6 factorial, that is 8 into 7 into 6 factorial upon 2 into 6 factorial, 6 cut, 8 7s are 56 and 56 divided by 2 we saw 28. So this is our n. The first question says that both are husband and wife. Now इसका मतलब क्या होता है कि we need to select, पूरे क्वेश्चन में तुम ये ध्यान रखो, वी नीड टू सिलेक्ट. नाउ यहाँ पे अभी थोड़ा स्लो जाएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट सम है, इतना इजीली समझ नहीं आ सकता किसी को, ठीक है. सो वी नीड टू सिलेक्ट 2 पीपल ओनली. ये क्वेश्चन की कंडीशन है दैट दो को ही सिलेक्ट करना है. और तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो जो है ना, एक हस्बैंड है एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ दोनों होने चाहिए. मतलब इट कैन नॉट बी लाइक हस्बैंड 1 एंड हस्बैंड 2, हस्बैंड 1 एंड वाइफ 2, ऐसा नहीं. अगर हस्बैंड 1 है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वाइफ 1 आएगी, या तो फिर हस्बैंड 2 वाइफ 2, या तो फिर हस्बैंड 3 वाइफ 3, या तो फिर हस्बैंड 4 वाइफ 4. मतलब वी कैन से कि ये 4 कपल ये में से कोई एक कपल को सिलेक्ट कर देंगे तो अपनी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी. कंडीशन कैसे फुलफ़िल होगी कि हमको 2 इंसान चाहिए, 2 इंसान चाहिए ना, तो एक कपल में 2 इंसान तो होते ही है, और वो जो 2 इंसान हो गए वो हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे. तो ये हस्बैंड वाइफ वाले जो 4 आउटकम है उसमें से कोई एक आउटकम सिलेक्ट कर ले तो हमारा सम हो जाएगा. इन शॉर्ट इसका आंसर है 4 कपल में से एक कपल को सिलेक्ट करना विच इज़ 4C1, और 4C1 का डायरेक्ट आंसर होता है 4 ओनली. सो P ऑफ A m अपॉन n 4/28. सम इज ओवर. Easy. Question 2 says 1 man and 1 woman. 1 man and 1 woman. Right. Now if there is a 1 man, we know there are total 4 husband which is also known as 4 men obviously. तो 4 मर्द है और 4 महिलाएं हैं. दोनों में से मतलब 4 हस्बैंड में से, मतलब 4 मेल में से किसी एक मेल को सिलेक्ट करना है एंड 4 फीमेल में से किसी एक को सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे 1 मैन आउट ऑफ 4 मैन, तो 4C1 हो जाएगा. एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन. 1 वुमन आउट ऑफ 4 वुमन, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन 4C1. 4C1 इंटू 4C1 4 इंटू 4 विच इज़ 16. तो P ऑफ B m अपॉन n 16/28. And third question says 1 man and 1 woman who are not husband and wife. Question third says 1 man and 1 woman who are not husband and wife. नाउ तुमको ना एकदम इजी वे में अगर सीखना ना, एकदम इजी वे में, तो क्वेश्चन ज़रा समझो. 1 मैन एंड 1 वुमन जो है ना, 1 मैन एंड 1 वुमन, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन और ये थर्ड वाला क्वेश्चन, 1 मैन 1 वुमन आर सेम, राइट. हस्बैंड एंड वाइफ जो है, हस्बैंड एंड वाइफ, वो अपना पहला ये वाला क्वेश्चन है हस्बैंड एंड वाइफ, राइट. इन दोनों के बीच में वर्ड कौन सा लिखा है? नॉट. मतलब वी वॉन्ट 1 मैन एंड 1 वुमन, एक पुरुष और एक महिला होने चाहिए, बट वो दोनों जो है ना वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए. अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो ये लोग क्वेश्चन में क्या बताना चाहते हैं? ये लोग क्वेश्चन में ऐसा बताना चाहते हैं कि हस्बैंड 1 अगर है ना तो उसके साथ वाइफ 2 चलेगी, हस्बैंड 1 के साथ वाइफ 3 चलेगी, हस्बैंड 1 के साथ वाइफ 4 चलेगी. मतलब कहाँ चलेगी? ये पार्टी चल रही है, ऑल राइट. तो सोचना मत कुछ और. हस्बैंड 1 वाइफ 1 नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, मतलब बीजाना बैरी जो ही એટલે किसी और की वाइफ.
हस्बैंड 1 वाइफ 2, हस्बैंड 1 वाइफ 3, हस्बैंड 1 वाइफ 4। या तो फिर क्या बन सकता है, हस्बैंड 2 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 3, हस्बैंड 2 वाइफ 4, और क्या हो सकता है, हस्बैंड 3 वाइफ 1, हस्बैंड 3 वाइफ 2, हस्बैंड 3 वाइफ 4, और लास्ट हस्बैंड 4 की बारी, हस्बैंड 4 वाइफ 1, हस्बैंड 4 वाइफ 2, हस्बैंड 4 वाइफ 3। सो देर आर टोटल 12 आउटकम्स। तो इसका आंसर बन जाएगा P ऑफ C 12/28, राइट। अगर तुमको डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, तो देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मैन 1 वुमन, उसका आंसर 16 है, 16/28। और फर्स्ट का आंसर हस्बैंड वाइफ हमको नहीं चाहिए, मतलब 4/28 जो इसमें से माइनस कर देंगे तो 16 - 4 इज़ अगेन 12 ओनली। तो यू हैव टू ऑप्शन, वन इज़ मैन्युअली, वन इज़ डायरेक्टली। डायरेक्ट करने जाओगे तो समझना पड़ेगा, मैन्युअली करोगे तो थोड़ा टेक्निकल अपना जो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि अगर चलाओगे तो भी तुमको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. So there are 52 cards, उसमें से 2 cards सिलेक्ट करें। तो अगर 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन क्या बनेगा, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन बनेगा 52C2। द फॉर्मूला इज 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 52 - 2 फैक्टोरियल। सो 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। So 52 into 51 into 50 factorial divide by 2 into 50 factorial. So 50 कट। तो कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। 52 into 51 divide by 2 is equal to 1326. So our n total ways of selection is 1326। ये हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप है। और वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो 2 कार्ड जो सिलेक्ट कर रहे हैं, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहले तुमको पत्तों के बारे में कुछ पता होना चाहिए। पत्ते के बारे में अगर सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं, अगर तुम पत्तों को देखोगे तो 4 चीज़ें होती है। वन इज़, ये क्या बना दिया है पता नहीं, वन इज़ स्पेड, देन वन इज़ क्लब जिसको फल्ली बोलते हैं अपने, स्पेड को काड़ी बोलते हैं, देन अदर वन इज़ हार्ट, एंड लास्ट वन इज़ डायमंड। 13 13 13 each. This is known as suit, that is suit 1 2 3 4. This is black cards and these are red cards. So we can say that there are total 26 red and 26 black, 13 13 13 13 each, which makes it 52 cards, and 26 26 also makes it 52 cards only. और कार्ड्स कैसे होते हैं, सो सबसे पहले शुरू होता है ए फॉर एस, then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jack queen king. This is known as face cards because इसमें चेहरे होते हैं वो किंग राजा रानी के. This is known as नंबर कार्ड्स, बेसिकली इसको बोलते हैं नॉन फेस कार्ड. सो दिस इज इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोले, बोथ द कार्ड आर डिफरेंट कलर, दोनों अलग अलग कलर के हैं. बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब वी कैन से कि यहाँ पे टोटल 2 ही कलर के कार्ड्स है, वन इज़ ब्लैक एंड वन इज़ रेड. और यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोला है, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर.
दोनों अलग अलग कलर के हैं, मतलब 1 विल बी ब्लैक एंड 1 विल बी रेड। तो एक ब्लैक सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 26 ब्लैक, सो 26C1 हो जाएगा, एंड 1 रेड आउट ऑफ अगेन 26 रेड, सो अगेन 26C1 एंड 26 into 26, which I don't know, so we need, I think it is 576, something like that. 26 into 26, it is 676. Okay, so 676, so P of A M upon N will be 676, pakka 676, yes, 676 upon 1326, that is our N. Alright, second question says both the cards are face card, both आर फेस कौन से होते हैं, सो दिस इज़ फेस। नाउ फेस कार्ड जो है ना, ये चारों के हो गए, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। आई एम सॉरी, फेस कार्ड जो है ना वो सबके हो गए, जैक क्वीन किंग फॉर स्पेड, जैक क्वीन किंग फॉर क्लब, जैक क्वीन किंग फॉर हार्ट, जैक क्वीन किंग फॉर डायमंड। तीन चारों के हो गए, सो देर आर टोटल 12 face cards, right? 3 each, spade, club, diamond, heart, 12 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है, both, so 12C2 is our outcome, that is 12 factorial upon 2 factorial into 12 minus 2 factorial, so 12 into 11 into 10 factorial upon 2 into 10 factorial, 10 cut, 12 into 11 divided by 2, I know I should be able to do it directly, but anywho, 12 into 11 divided by 2, 66. So 66 divided by 1326 is our answer. You cannot write like this in your examination, all right? I am just like, तुमको आता ही होगा थोड़ा बहुत, इस हिसाब से मैं तुमको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बट मैं अच्छे से नहीं लिखूँगा बिकॉज या तुम होशियार हो यार, तुम पे मैंने छोड़ दिया बाकी सारी चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन सेज वन ऑफ द 2 कार्ड्स इज़ अ किंग, दोनों में से कोई एक ही किंग है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, दोनों में से कोई एक ही किंग है, ऑलराइट, मतलब 1 किंग एंड अदर 1 कैन बी एनीथिंग। सबसे पहले कितने किंग होते हैं, तो देखो एक सूट में एक ही किंग होता है, ऐसे 4 सूट है तो सबके एक एक किंग होगा, सो देयर आर टोटल 4 किंग्स, उसमें से अपने को एक किंग चाहिए तो 4C1 बन जाएगा, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अदर कैन बी एनीथिंग। अभी देखो 52 कार्ड्स में से अगर तुम 4 किंग को निकाल दोगे, बिकॉज 4 किंग की बारी तो हो गई, तो बाकी अदर 48 कार्ड्स ही है ना, तो जो दूसरा वाला है वो 48 में से कोई एक होगा तो 48C1 हो जाएगा, एंड 4C1 इज़ 4, 48C1 इज़ 48, एंड 4 into 48 आई वोंट बी एबल टू डू इट एनी हाउ, 4 into 48 इज़ 192, so 192 is our outcome, so probability will be 192 divided by 1326. Alright, you can write this event C also, you can write event A1, A2, A3 for individual questions, you can write P of A, P of B, P of C for individual questions. I hope you are getting it. And last question for today, question number 16, ये important है, मज़ा आएगा इसमें। 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs, there are total 10 bulbs, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 7 जो है वो नॉन डिफेक्टिव हो गए। ये डायग्राम तुमको एग्ज़ाम में बनाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा तुमको ना हेल्प होगा, मानो मेरी बात कभी कभी। 2 bulbs आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स, मतलब 10 में से वी नीड टू सिलेक्ट 2 ओनली। सो हमारा सबसे पहला स्टेप, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन क्या बन जाएगा, 10C2 विच इज़ 10 factorial upon 2 factorial into 10 minus 2 factorial, that is 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial,
which is 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 into 8 factorial, 8 8 cut, 10 9s are 90, 90 divided by 2 is 45. So n is equal to 45. Alright. Now 10 में से 2 डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है, आई एम सॉरी, 3 डिफेक्टिव है और 7 नॉन डिफेक्टिव है. प्रोबेबिलिटी जो है ना यहाँ पे बहुत मस्त दिया है. दिस बल्ब्स आर फिक्स्ड इन 2 बल्ब होल्डर, मतलब एक रूम में 2 बल्ब होल्डर है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई. ना तुमको यहाँ पे ये समझना है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव की अभी तक नहीं बताया है कुछ. ऐसा नहीं बोला है कि सिलेक्ट डिफेक्टिव, ऐसा भी नहीं बोला है सिलेक्ट नॉन डिफेक्टिव. ऐसा बोला है कि रूम में बहुत अंधेरा है, तुमको रूम में लाइट करनी है और तुम्हारे पास 2 बल्ब होल्डर ही है, 2 बल्ब होल्डर ही है. तो तुमको अगर रूम में लाइट करनी है तो तुम सोचो कि तुम्हारे बल्ब डिफेक्टिव होने चाहिए कि नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रूम में लाइट करनी है तो बल्ब जो है वो नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, राइट. तो अगर मेरे पास 2 बल्ब होल्डर है तो मैं दोनों बल्ब होल्डर में नॉन डिफेक्टिव बल्ब वाले ही लगाऊंगा. तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 7C2 के नॉन डिफेक्टिव 7 है, उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए. बट हियर्स द ट्विस्ट, द थिंग इज बल्ब रूम जो है वो लाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है. सपोज़ ये सर ड्राइंग नहीं करना है लेकिन कर 2 बल्ब होल्डर है और ऐसा पर्पल लाइट है अपनी, तो पर्पल लाइट शुरू होने से ऐसा पर्पल लाइट हो गई पूरे रूम में. दोनों बल्ब शुरू किया तो रूम में लाइट हो गई. बट कहना इसे कि एक अगर बल्ब चला और दूसरा डिफेक्टिव निकला तो भी रूम में लाइट तो है ही ना. बहुत ही मैंने ऐसा गंदा ड्राइंग किया है यहाँ पे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दैट्स वाई आई एम रेडी टू एम्ब्रेस माई सेल्फ कि रूम में लाइट करनी है. तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन सिलेक्ट बोथ नॉन डिफेक्टिव और यू कैन सिलेक्ट 1 डिफेक्टिव गलती से एंड 1 नॉन डिफेक्टिव. क्योंकि जैसे ही अगर एक भी नॉन डिफेक्टिव है मतलब एक लाइट तो हो रही है और रूम में लाइट हो गई, उसकी नीड फुलफिल हो गई. क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि दोनों नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करो, वो तो हमने दिमाग चलाया कि दोनों नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करेंगे तो रूम में ज़्यादा लाइट होगी. बट एक से भी काम चल जाएगा भाई. सो सबसे पहले हमने जो किया था ये 7C2 वो आधा तो राइट ही है. मतलब सबसे पहले 7 में से दोनों नॉन डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट किए. और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एडिशन. अभी एक डिफेक्टिव सिलेक्ट करेंगे और एक नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करेंगे. एक डिफेक्टिव आउट ऑफ 3 डिफेक्टिव, दैट इज़ 3C1 एंड 7C1, ये दोनों पॉसिबिलिटी है. बीच में और का मतलब प्लस. 7C2 का आंसर होता है 21 एंड 3C1 इंटू 7C1 इज़ ऑल्सो 21 एंड 21 प्लस 21 इज़ 42. तो अपनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी m/n which is 42/45. I hope you get this answer, and if you are not able to get this answer, and if you are really watching, and if you are really a student and not just a random follower just here to like my video, if you are watching this and if you need a different method for this sum, comment down that we want another method also for the last sum. So I will make a specific video lecture for this question where I will be solving both with both the methods. एंड इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन भी है, एंड आई रिमेंबर इट इज़ आई गेस इलस्ट्रेशन 11 है. ऐसा 11 नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज़ इलस्ट्रेशन 18 और समथिंग जो इसके जैसा ही है. यस इट इज़ 18, जिसमें भी तुम 2 मेथड यूज़ कर सकते हो. तो इफ़ यू रियली वांट आई कैन सॉल्व आई कैन सॉल्व विथ बोथ द मेथड्स फॉर यू. Just let me know. All right, and I hope you are preparing well for your exams. Take care, good luck, bye everyone.